নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰ হেড ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংঘৰ্ষত 5 জোৱান শ্বহীদ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ সেক্টৰত সংঘৰ্ষ এজন সুবেদাৰকে ধৰি 5 নিৰাপত্তাৰক্ষী শ্বহীদ হৈছে অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংঘৰ্ষ পুনৰ জনাইছো জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংঘৰ্ষত 5 জন জোৱান শ্বহীদ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ সেক্টৰত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ এজন সুবেদাৰকে ধৰি 5 জন নিৰাপত্তাৰক্ষী শ্বহীদ হৈছে অব্যাহত আছে এতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদীৰে সংঘৰ্ষ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকাৰী কৃষকৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই 4 গৰাকী নিৰীহ কৃষকক হত্যা কৰা বিজেপি চালকৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ তেনিকৰ পুত্ৰসহ সকলো অপৰাধীক কষ্টুৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান আৰু মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ তেনিক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মৌনব্ৰত কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিধায়ক ভৰত নৰহু উপস্থিত আছে এতিয়া অজয় মিশ্ৰ তেনী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ উচতনিতে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে লখিমপুৰ খেৰি ঘটনাটো হৈছে কিন্তু দুয়োখন চৰকাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই অজয় মিশ্ৰ তেনীক লগে লগে বৰখাস্ত কৰিব লাগে বৰখাস্ত কৰাটো উচিত আছিলে কিন্তু বৰখাস্ত কৰা নাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ নেতৃত্ব যিটো হৈছে তাতো ইউ পি গভৰ্ণমেণ্টে সদায় ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে উপায় নাপাই পেলাই তেওঁ এতিয়া হয়তো নিজে সাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে হয়তো জেললৈ পঠিয়াইছে নাই কৰা একেবাৰে কোনো ধৰণৰ কৰাই নাই তেওঁলোকে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ চাৰিওফালে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ৰাজধানীবিলাকত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে মৌনব্ৰত ধাৰণ কৰিছে আৰু সোঁৱৰাই দিব খুজিছে যে এয়া আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ সংবিধানখনক ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্ব কংগ্ৰেছ দলে পালন কৰিব নিজ কন্যাক বন্ধুৰ সহযোগত 1 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিলে লখিমপুৰৰ এজন পাহান পিতৃয়ে অৰুণাচলৰ নাহৰলগুন পাপুহিলৰ এক সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালক বিক্ৰী কৰিছিল 7 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো জনৈক আলীৰ উপাধিৰ লোকজনে সংঘটিত কৰিছিল এই কুকাৰ্য লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিক ইমানেই নহয় নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ পূৰ্বে পত্নীক 3 তালাকো দি খেদি দিছিল পিতৃগৃহলৈ নিজ সন্তানক বিক্ৰীৰ লগতে 3 তালাকৰ দৰে কুপ্ৰথাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া এই অধম পিতৃজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে সচেতন লোকে কেনেকৈ নিবলৈ পালে ক'ত বিক্ৰী কৰিছিল কি জানে বাচ্চাটোতো আমাৰ লগত আছিলে তাৰ পৰা ইয়াত আনিলে তাৰ দাদীয়েকে আনিলে ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল অৰুণাচল লৈ পেলাই বোলে বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে বুলি গম পাইছে বিক্ৰী কৰিলে তাৰ মানুহে কৈছে 1 লাখ টকাত বোলে বিক্ৰী কৰিছে তাৰ আগে আপুনি বাধা দিয়া নাছিলে নেকি বাচ্চাটো নিবৰ কাৰণে মই গম নাপাওঁ আপুনি আপোনালোকৰ তালাক হৈছিলে তেনেকুৱা কিবা ঘটনা হৈছিলে নেকি হৈছিলে 2 মাহমান আগত মোক মানে মদ চদ খাই পেলাই তালাক দিছিলে সেইকাৰণে মানে আমাৰ হেৰিত মানে সেইবিলাক মানে ধৰিলে যে সমাজত পাছত মই মানে ঘৰত গুচি গৈছিলোঁ তালাক মানে এনে মুখে তালাক আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा और आइए देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का करेंगे शुभारंभ इस अवसर पर पीएम अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी करेंगे बातचीत एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी कर आईएसआईएस वॉइस ऑफ हिंद मामले में आईएसआईएस के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए चीन स्थित मोल्दो में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की वार्ता संपन्न दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लगातार कर रहे हैं प्रयास
अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे आज 5 दिवसीय यात्रा भारत पहुंचेंगे। गिल्डे अपनी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और कई नौसैनिक अधिकारियों और नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत ने मालदीव के साथ 2018 वीजा मुक्त समझौता फिर शुरू किया। मार्च 2020 में कोविड प्रतिबंध लागू होने के बाद से मालदीव वीजा मुक्त यात्रा का लाभ लेने वाला पहला देश बना। और चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर नवीं बार फाइनल में पहुंची। आज दूसरे प्लेऑफ में कोलकाता से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। यह नीतिगत परामर्श देगा, जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप देश को आत्मनिर्भर, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सहयोग देगा। इस संघ अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियां शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला सहित जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के 2 सदस्यों तौसीफ अहमद वानी और फैज अहमद खान को साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इस मामले में लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से की गई छापेमारी के दौरान मोबाइल, पेन ड्राइव, डेटा स्टोरेज डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जांच से पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संचालकों ने जम्मू कश्मीर में स्थित अपने सहयोगियों से मिलकर जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यापक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी। भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रविवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच चीन स्थित मोल्दो में 13वें दौर की वार्ता हुई। यह वार्ता लगभग 8.5 घंटे तक चली और शाम करीब 7 बजे संपन्न हुई। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजेके मेनन ने किया। गौरतलब है कि पूर्व की बातचीत के दौरान दोनों देश पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों से सैनिकों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों के बीच पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों को लेकर सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। माइक गिल्डे के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके साथ नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारत दौरे पर गिल्डे भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारों के अनुसार माइक गिल्डे के दौरे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझा सहयोग और समन्वय को और अधिक बढ़ाने पर फोकस रहेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज 3 दिन की न्यूयॉर्क यात्रा पर रवाना होंगे। मुरलीधरन शांति स्थापना और सतत शांति के विषय पर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च स्तरीय विचार विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केन्या ने यह बैठक बुलाई है, जो अक्टूबर माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में विश्व में संघर्षों की रोकथाम और समाधान तथा विविधता के प्रभावी प्रबंधन और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार होगा। और भारत ने मालदीव के साथ 2018 वीजा मुक्त समझौता फिर से शुरू कर दिया है। आगामी 15 अक्टूबर से भारत की यात्रा करने वाले मालदीव के नागरिकों को किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों देशों ने 2018 के द्विपक्षीय वीजा मुक्त समझौते को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। कोविड महामारी के कारण समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। अब दोनों देश इस समझौते को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस संबंध में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आभार जताया है। मार्च 2020 में कोविड प्रतिबंध लागू होने के बाद से मालदीव भारत की वीजा मुक्त यात्रा का लाभ लेने वाला पहला देश बन गया है। और खबर क्रिकेट के मैदान से। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में जगह बना ली है। चेन्नई ने सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा के अर्धशतकों और अंत के ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारी के दम पर पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही चेन्नई ने 9वीं बार आईपीएल फाइनल में स्थान बनाया। दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 172 रन का स्कोर बनाया। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने सबसे अधिक 60 रन बनाए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 51 रन की पारी खेली। 173 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 70 और रॉबिन उथप्पा ने 63 रन की पारी खेली। वहीं धोनी ने 6 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 18 रन बनाए। और आईपीएल में आज अपने पहले खिताब की कवायद में लगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस सत्र के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके कोहली की अगुवाई में आरसीबी 2016 में फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा उनके नेतृत्व में टीम 2015 और 2020 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी और अब कोहली खिताब के साथ कप्तानी से शानदार विदाई लेना चाहेंगे। मॉर्गन के सामने केकेआर की खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने की चुनौती है। टीम ने 2012 से 2014 के बीच 3 साल के अंदर गौतम गंभीर की अगुवाई में 2 बार खिताब जीता था। आंकड़ों के लिहाज से केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी है। उसने दोनों टीमों के बीच खेले गए 28 मैचों में से 15 में जीत दर्ज की है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।